किसी शायर ने खूब कहा है, निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। आइए चले सुनते हैं कहानी ऐसे ही चिराग की। उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था, उसे अपनी मेहनत पर इतना भरोसा था कि उसकी किस्मत को भी खुद से ज़्यादा उस पर भरोसा था, उस पर भरोसा था। ऐसे ही एक किस्मतदार आदमी, आइए ऐसे ही एक होनहार बालक की कथा हम आपको सुनाते हैं। यह घटना है 7 जुलाई 1954 की, जिस दिन पिता अमृतराव और माता श्रीमंतिनी को वरदान के रूप में भगवान ने एक बालक दिया। दिनांक 7 जुलाई 1954 को इस जगत में एक ऐसे महान हस्ती का आगमन हुआ जो आगे चलकर शैक्षणिक क्षेत्र का एक आदर्श मील का पत्थर साबित हुआ। आगे चलकर यह बच्चा इतना आगे जाएगा किसे पता था। जानना चाहेंगे उसका नाम? जी हाँ, रुकिए, उस महान व्यक्ति का नाम हम आपको बताते हैं। किस्मत की लकीरें भी अपना रास्ता बदल लेगी, किस्मत की लकीरें भी अपना रास्ता बदल लेगी। तू एक दफ़ा मेहनत तो करके देख ले, तू एक दफ़ा मेहनत तो करके देख ले। यह महान हस्ती, एक महान व्यक्तित्व और एक आदर्श प्राचार्य दूसरा तीसरा कोई नहीं बल्कि प्राचार्य श्री बाबूराव अमृतराव महेंद्रगे सर, यानी कि हमारे प्रिंसिपल सर, जिनका जन्मदिन हम मना रहे हैं। इनका जन्म उस्मानाबाद जिले के कलम तहसील का एक छोटा सा गांव पानगांव में हुआ। उनके पिताजी अमृतराव और माताजी श्रीमंतिनी के नाम में जो विशालता है, वही अमरत्व का श्रीमंत योग इस बच्चे में ठूस ठूस के भरा पड़ा है। 2 भाई और एक बहन में मझले नंबर का यह नटखट बालक बचपन से ही अपनी चमक और बुद्धि चातुर्यता दिखाता रहा। पानगांव में यह छोटा सा गरीब परिवार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहा था। किसानी परिवार होने की वजह से घर में शिक्षा के बारे में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन इस बच्चे ने घर की इस परंपरागत चौखट को लांघ दिया और शिक्षा दीक्षा की इनकी यात्रा शुरू हो गई। His father couldn't afford education, so he couldn't supported by his father due to the circumstances. He came from a very financially poor family background. But the quest of education could not stop him. Deprivation of education depressed him a lot. He cried for the education, but he did not quit the education. Hence, as if self-ignited, he went to seek the further education in Ratnapur. After 4th standard till 7th standard, he pursued his education in the nearby village. The small boy had to walk 5 kilometers every day to reach the school. रोके से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम।
Let us now be acknowledged and be enlightened with the schooling days of this young child. This young child's school days were not so easy. His father was a farmer by occupation who led a very simple life. This young child completed his primary education till 4th standard in his village, that is Pangav. With such determination, he could complete his secondary education too. This displayed in-depth interest in the seeking of education. He went for the secondary education and he took Jnanodyog Vidyalaya Ermada and completed his education in the same school. He would go 6 kilometers away from his village. He had to walk several miles to attend the school. The child was so ambitious. He was self-motivated to achieve something. No one would have thought that his tiny steps toward his primary school would lead him to Rashtrapati Bhavan to receive the prestigious Rashtrapati Puraskar Award. When you dream big, you think big. When you take big actions, and ultimately all these actions yield big results. Sir dreamed to learn at any cost and he finally cherished his dream. So after 10th, he enrolled at Shalivahan Mahavidyalaya Barshi. He was there for 1 year during his intermediate, that is PUC education. It was the same horrible year of 1972 drought situation. It was a terrible drought in the country. The condition at his home was not so favorable to continue his further education. Hence, his maternal uncle took the responsibility of his further education and Sir moved to Paitan, Aurangabad to his maternal uncle. Graduation is completed in 1975 successfully. Still, the burning desire of education did not stop within him. He was not prohibited, neither stopped, because of the various odds in his life. For post-graduation, later he took admission in Marathwada University, Aurangabad. After first year of MA, he applied for B.Ed and got selected as per the merit. In 1977, Sir completed his B.Ed. Hence, in the year 1978, with the completion of B.Ed degree, Sir joined in Paitan Shalivahan Vidyalaya as a teacher on the 1st of August 1977. उनकी पढ़ाई के प्रति जो रुचि और मेहनत है वो आखिर रंग लाई। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक इसी तरह गरीब परिवार में जन्मा यह छोटा सा बालक जब शिक्षा दीक्षा लेकर अपनी काबिलियत सिद्ध करने लगा और अपनी मंजिलों को एक के बाद एक पाने लगा तो माँ बाप को भी गर्व महसूस होने लगा। अतः पैठन में महाविद्यालयीन शिक्षा लेने के बाद शिक्षक की नौकरी के रूप में नियुक्त हुए। ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा होने के बाद माँ बाप ने सोचा कि इसे गृहस्थाश्रम का भार भी सौंपना चाहिए, अर्थात शादी करने का तय हो गया और यह बालक से सर बन गया। यह कोई और नहीं बल्कि प्राचार्य महेंद्र सर जी है। कहते हैं कि शादी सिर्फ दो लोगों का मेल नहीं बल्कि दो परिवारों का बंधन भी होता है। जीवन का सबसे अहम हिस्सा दो परिवारों से जुड़े हर रिश्तेदारों का एक बड़ा सा परिवार और शादी गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर समाज में अपने उत्तराधिकारित्व की सिद्धता को पाना होता है। ऐसे में सबकी खुशी का ख्याल रखते हुए पति पत्नी को आगे बढ़ना होता है। इसलिए तो कहा जाता है कि विश्वास पत्थर को भगवान बना देता है, विश्वास ही दूसरों से प्रेम करने पर मजबूर कर देता है और विश्वास ही शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बना देता है। वैसे देखा जाए तो सर का परिवार गरीब लेकिन संस्कारों से भरा पूरा था।
अतः शादी के लिए लड़की भी संस्कारी और गरीब घर की ही पसंद करनी थी। लेकिन कुछ हुआ यूं कि सर ने शिक्षा लेकर गवर्नमेंट की नौकरी हासिल की थी, इसलिए सर को एक बिजनेसमैन परिवार की और बड़े घर की बेटी का रिश्ता आया। अब डर यह था कि यह अमीर घर की बड़े बाप की बेटी इस गरीब परिवार में एडजस्ट कर पाएगी। वह लड़की भले ही बड़े घर की हो, लेकिन उसके संस्कारों में उनके माँ बाप ने कोई भी कमी नहीं छोड़ी थी। इसलिए उस लड़की ने उस दिन से लेकर आज तक अपनी बिजनेस फैमिली का कभी एहसास होने नहीं दिया। वो लड़की जिसका नाम कल्पना है, सौभाग्यवती कल्पना मैंदरगे है, जो आज मैंदरगे फैमिली का एक बरगद का पेड़ बनकर सबको अपनी छाया से पल्लवित कर रही है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। पंछी बोले हैं क्या पिया सुन ले चलो, प्यास बढ़ती रहे प्यार होता रहे। मुक्याने बोलले गीत ते चाहले, स्वप्न साकारले पहाटे पाहिले, नावना त्याला काय नवे, वेगळे मांडले सोहळे तुझसाठी। हो हो मिळावे तुझे तुला आस ही ओठी। विवाह के बाद इन दोनों के संसार की बेली पर शीतल और कोमल नामक दो प्यारी कलियों ने जन्म लिया। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी आई कोई परी, भोली सी न्यारी सी अच्छी सी आई कोई परी। कुछ साल बाद इनके संसार के आंगन में एक प्यारा बच्चा किलकारियां मारने लगा। आज ही के दिन हमने तुमको रब से पाया था, जन्नत से तो साथ में खुशियाँ कितनी लाया था। हो आसमानों को छू ले तू, ये दुआ हमारी है। अपनी उम्र भी हमने तो हंस कर तुम पे वारी है तेरे जन्म का ये शुभ दिन, 100 बार आए ये शुभ दिन, ख्वाब पूरे हो तुम्हारे अरमां इस दिल का। तुमको मुबारक हो ये पल अपने जन्मदिन का, भव्य तो जान से प्यारा तो है संसार हमारा है, भव्य तो जान से प्यारा तो ये संसार हमारा है। जिसका नाम आदित्य है, जिसके आने से घर में खुशी का ठिकाना न रहा। उनकी खुशियों में 4 चांद लग गए, मानो दिन दुगनी और रात चौगनी हो गई। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और वह अपने अपने सांसारिक जीवन में खुशहाल है। फिलहाल उनका लाडला बेटा आदित्य डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करके अनिवार्य रुग्ण सेवा में लग चुका है। कहते हैं कि एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ठीक इसी प्रकार मैडम ने सर को साथ दिया और सर ने उस साथ को अपने हाथों के कठिन संघर्ष
और मजबूत इरादों से यह मुकाम हासिल किया और वे प्रिंसिपल बन गए। और मसलन यह निकला कि मैडम भी प्रिंसिपल साहिबा बन गई। वैसे सर का स्वभाव अनुशासन प्रिय, इसलिए कुछ गलती हुई नहीं कि सर का गुस्सा आसमान छू जाता है। लेकिन ऐसे में मैडम ने हर वक्त अपने प्यार के जादू से सर के गुस्से को प्यारी सी मुस्कान में बदला है। इसलिए हम सभी मैडम को प्रिंसिपल साहिबा नाम से ही पहचानते हैं। मैडम के इस योगदान को हम सभी प्यार भरा सजदा करते हैं। हम सब की दुआ है कि इस शानदार वैवाहिक जीवन यात्रा की बधाइयाँ। हमें उम्मीद है कि आप प्यार, देखभाल और एक दूसरे के समर्थन के साथ हर पल का आनंद लेंगे। Simple child leading as a commendable principal now. God knows whom to give the challenge. This was proved when he got his first appointment as a principal in an Naxalite area, welcoming with the showers of challenges. It wasn't like a cakewalk. Though promoted as a principal, working in Naxal area would never be the piece of cake for others. But for this man of challenges, it was like a cakewalk. Thenceforth, his career as a principal began in Ratlam, Madhya Pradesh in 1997. नौकरी लग चुकी थी। अपनी अध्यापन की कला से एक के बाद एक पायदान पार करते हुए अपने शिखर को छूते हुए सर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन सब कुछ ठीक ठाक चलते हुए भी एक आध प्रसंग ऐसा आ जाता है जहां पर जिंदगी थम सी जाती है। कहते हैं ना कि कर्मों की आवाज शब्दों से भी ऊंची होती है। इसलिए अपनों को तो तोहफे में घड़ी देना आसान है, किंतु वक्त देना बहुत मुश्किल होता है। ठीक कुछ ऐसा ही मोड़ सर के जीवन में आया। सन 1999 को सर के पिताजी अमृतराव महेंद्रगी जी का दुखद निधन हुआ। सर को उस वक्त बहुत दुख हुआ। वो अपने अंदर ही अंदर घुटन महसूस करने लगे थे, क्योंकि सर को अपने पिताजी के अंतिम संस्कारों में आना संभव नहीं हुआ था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते न बीतते तो पिताजी के निधन का साया अभी हटा ही नहीं था कि माताजी श्रीमंतिनी देवी का 2002 में निधन हुआ। सर और मैडम के पारिवारिक जीवन में यह दो सबसे बड़े आघात थे। इतना दुखों का सागर हृदय में लेकर सर फिर से अपने शैक्षणिक कार्यों में डटे रहे। शैक्षिक कार्यों के साथ साथ सर ने अपने कासार समाज के लिए भी बहुत काम किया है। कहते हैं ना, जहाँ खुशी वहाँ गम का साया भी मंडराता है। यह हर एक के जीवन की एक अनुभूति रहती है। ठीक उसी तरह सर के जीवन से भी माता पिता का साया हमेशा के लिए हट गया। अतः सर अपने माता पिता ने दिए हुए संस्कारों को अपने शैक्षिक कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ाने में लगे हैं। गम न कर, जिंदगी बहुत बड़ी है, चाहत की महफिल तेरे लिए सजी है, बस एक बार मुस्कुरा कर तो देख, तकदीर खुद तुझसे मिलने बाहर खड़ी है। Let us now be acknowledged with the honorary achievements of our principal sir. During his tenure as a principal in JNV Pune, he was recommended for the Best Teacher Award and he was conferred as the Best Teacher Award by the President of our country. Rashtrapati Puraskar Award presented by Sri Pranav Mukherjee, Honorable President of Government of India, which was a proud and worthy moment of his life. So many honors, putting in words is impossible. Recognition and respect for his many achievements came through a number of awards, including the highest educational award in India, Rashtrapati Puraskar Award in 2013 in Delhi,
he received from the Government of India, presented by Sri Pranav Mukherjee, Honorable President of Government of India. He also received an award from EQFI CBC Delhi for his mesmerizing contribution in the field of teaching. This award is given for the maintaining the quality of education. He is the one amongst many principals who was bagged the Best Principal Award. National Award in 2006 in Bal Bhavan, New Delhi, received from Navodaya Vidyalaya Samiti, presented by Honorable Sri Arjun Singh, HRD Minister, Government of India. He was also the recipient of several other awards and rewards, including his work in education, was rewarded with the national awards presented by Ministers of India. He was bagged National Education Award and also conferred many more such recognizable awards. Talent is always praised, and the reward our principal received says it all. His awards are innumerable. Let us have a glance at his tremendous achievement that taken us into the past glory. मिले हुए ज्ञान का प्रत्यक्ष व्यवहार में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए, यह इन्हें मिले हुए मान सम्मान से हमें समझ में आता है। सर का आगमन जब लातूर के नवोदय विद्यालय में हुआ, तभी यह नवोदय विद्यालय अनेक बेजवाबदार बातों से रोज सुर्खियों में रहता था। वहाँ की जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं था
लेकिन कहते हैं ना कि कह दो मुश्किलों से थोड़ा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा और कठिन हो जाए, नापना चाहते हो अगर हमारी हिम्मत को तो कह दो आसमान से कि थोड़ा और ऊपर हो जाए। लोग डर जाते हैं मुसीबतों को देखकर, पर मुसीबतों के बाद ही तो कामयाबी का सवेरा होता है। ठीक इसी तरह आदरणीय महेंद्र सर जी ने नवोदय विद्यालय की जिम्मेदारी खुद पर ली और खुद के ही बलबूते पर लातूर के नरक बने नवोदय विद्यालय को स्वर्ग में तब्दील कर दिया। कुछ सालों बाद प्राचार्य महेंद्र सर की शिक्षा व्यवस्था की महती का बोलबाला शिव छत्रपति शिक्षण संस्था के बहुआयामी महानुभवों को पहुंच गया और उन्होंने वैचारिकता की खुशबू से भरे इस फूल को अपने विद्यालय के लिए प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया। आदरणीय महेंद्र सर संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल में आने से पूर्व स्कूल का क्या माहौल था, किस प्रकार की परिस्थितियां थी, इसकी ओर थोड़ा ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो देखो, कहते हैं कि फूलों की खुशबू की सुगंध हर दिशा को महका देती है और सारा परिवेश सुंदर और प्रसन्न बन जाता है। ठीक कुछ इसी प्रकार संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल की इस बंजर जमीन पर जिस दिन प्राचार्य महेंद्र सर जी का पावन स्पर्श हुआ, उस दिन से लेकर आज तक यह STNMS की भूमि पावन ही होती जा रही है। एक बंजर जमीन पर हरियाली लाना कितना कठिन होता है यह हम सब जानते हैं, लेकिन शिव छत्रपति शिक्षण संस्था के बहुआयामी बोर्ड ने सर पर जो विश्वास दिखाया और सपोर्ट किया, उसका बखूबी से फायदा उठाकर प्राचार्य महेंद्र सर जी ने उस विश्वास को आज शिखर पर कैसे पहुंचाया है, चलो डालते हैं एक नजर।
school has been topped into the huge gears. The lush green campus that we have here speaks of his aesthetic sense. The smart classrooms says that his broad views and his mark in the field of teaching. He has foreseen the world, and so as to make his pupils face the future, he started coding classes. This we can have as one of his great achievements. IIT and NEET classes that we have today and what we call as Super 30 has taken its root only because of nourishing given by our beloved sir. No one knows the difficulties of water better than the people of Latur, and Sant Tukaram has not been an exception for that. But I can proudly say that it's all because of our beloved principal sir that we, the Sant Tukaram, have become the first school in Latur to set up a water recycling plant and run it successfully. We are indeed glad, pleased and blessed to have such a recognized, adorable and miraculous personality amongst us, and we are proud to work under Sir's guidance. Even here, with his unique working style and wide vision, he transformed every hook and corner of this institute, this providing name and fame widely. No one knows, whatever I say, that would be just a mere drop in an ocean. His actions are inexplicable. His achievements are innumerable. His vision is intangible. I feel we are the most blessed to have him as our leader. क्या कुछ बदलाव नहीं किए सर ने? सर ने एक विद्यालय सर्वांगीण किस प्रकार होना चाहिए इस पर ध्यान देते हुए खेल के मैदानों पर फोकस किया। क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, खो खो, कबड्डी हो, इन सभी खेलों के मैदानों पे जोर दिया। प्रार्थना के लिए जो मैदान है वहां पर नियोजनबद्ध तरीके से फर्श का आच्छादन किया, सुंदर और परिपूर्ण मंच बनाया, जिससे आज बच्चे अपनी प्रार्थना बड़े प्रसन्न मन से गाते हैं, सुनते हैं। बच्चों की भोजन व्यवस्था पर ध्यान देते हुए हफ्ते के 6 दिन बच्चों को अलग अलग प्रकार की सब्जियां, दूध, चावल, सलाद में अनेक फल, अर्थात कुल मिलाकर बच्चों का सकस आहार किस प्रकार उन्हें मिले, यह आग्रही कोशिश उनकी रही। विद्यालय की स्वच्छता पे जोर देना, विद्यालय की इमारत के सामने फाउंटेन का निर्माण तथा उसी इमारत के सामने का कच्चा रास्ता जो कीचड़ से हमेशा भरा रहता था, उसे राजपथ का रूप देकर वो सपना भी उन्होंने साकार कर दिखाया है। पूरे स्कूल में अनेकानेक प्रकार के पेड़ लगाकर हरियाली करना, बाहर की प्राइवेट बसेस को टालकर अपनी खुद की स्कूल की बसेस बच्चों और टीचर की सेवा में हाजिर करना। स्कूल का कोई भी टीचर यहाँ एक बार आए तो छोड़कर ना जाए, इसीलिए उनकी फिक्र में हर महीने के 1 तारीख को उनकी पेमेंट किस प्रकार हो जाए यह देखना, उनके भविष्य निर्वाह निधि के लिए प्रयास करना, टीचरों का एजुकेशन कैसे बढ़ाया जाए इस पर लक्ष्य केंद्रित करते हुए टीचर क्रिएटिव रहे, इसलिए किताबें कैसे लिखना। इतना ही नहीं, छात्रावास में टीचर को रहने के लिए निवास की व्यवस्था करना, स्कूल की संयोजिका कोपकर मैडम तथा ज्योति मैडम को कार्यालयीन कामों में ट्रेंड करना तथा अभी आए उप प्राचार्य रवि सर को भी ऐसी ट्रेनिंग देना चालू है, तथा हर टीचर का बर्थडे मनाना, उन्हें सम्मान पूर्वक उस समारोह में शामिल करना, इसके अलावा हर एक के सुख दुखों में शामिल होना। नतीजा यह निकला कि आज एक STNMS स्कूल एक STNMS फैमिली में बदल गया है। सबसे विशेष बात यह कि लातूर जिले की कौन सी भी ऐसी CBSE स्कूल नहीं है जिसमें इंडोर राइफल शूटिंग का निर्माण किया हो। हाँ दोस्तों, प्राचार्य महेंद्र सर जी ने संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल में इंडोर राइफल शूटिंग का जो निर्माण किया है वो बच्चों को बहुत ही आकर्षित करता है।
इन सारे विकासों का ब्यौरा देखते हुए आज के जो विरोधी पक्ष नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, पंकजाताई मुंडे, लातूर जिले के कलेक्टर जी श्रीकांत, इन सभी ने आकर स्कूल को भेंट दी है। इन्होंने अपने मुख से स्कूल के प्रति जो प्रशंसा व्यक्त की है वो बहुत ही अभिमानास्पद है, उल्लेखनीय है। इसके साथ ही कोरोना महामारी ने जो हाहाकार मचाया है, ऐसे में बाकी स्कूलों की दशा और दिशा बदल गई, लेकिन सर ने STNMS को दिशाहीन होने से बचाया। टीचिंग से लेकर नॉन टीचिंग स्टाफ को ऐसे हालातों में स्कूल में ही शामिल करके रखा और अपनी अनेक कल्पनाओं से स्कूल को संगीतमय और रंगीन बनवाया। आज स्कूल की सारी दीवारें आने वाले हर एक व्यक्ति को, हर एक बच्चों को बातें करती है। सभी बच्चों के जन्मदिन मनाना सर की ही कल्पना का रूप है। आज ऑनलाइन टीचिंग को अनेक प्रकारों से सरल और सहज बनाने के लिए सर का मोटिवेशन ही सब कुछ है, जिसमें QR कोड, PPT, वीडियोज, OBS सॉफ्टवेयर के द्वारा 3D इफेक्ट से अध्यापन कराना, ऐसे अनेक प्रकारों से बच्चों को घर में रहते हुए भी स्कूल का माहौल लगे या स्कूल का एहसास हो, यहाँ तक का प्रयास उनका अभी भी जारी है। यह सारे काम करने के लिए मैनेजमेंट का भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है, इसलिए सर अभी भी नए नए प्रयोगों में प्रयोगशील है। अभी का एक ताजा उदाहरण देखें तो 250 CBSE स्कूलों में से केवल 12 स्कूलों का चयन 12वीं का जो रिजल्ट है वो बनाने के लिए हुआ है, जिसमें अपना स्कूल भी है। यह केवल अपने स्कूल के सक्सेस का नतीजा है और इस सारी कार्यकुशलता का श्रेय आदरणीय प्राचार्य BA महेंद्रगे सर जी को ही जाता है। शिव छत्रपति शिक्षण संस्था के बहुआयामी महानुभवों ने महेंद्रगे सर के रूप में जिस हीरे को चुना था, उन्होंने जो चमक कोहिनूर हीरे से भी ज्यादा छोड़ी है, वह लाजवाब और काबिले तारीफ है। उनकी इस कार्य कुशलता को बहुत बहुत सलाम। Principal Sir strongly believes that since last 5 years, because of good leadership and a team of expert teachers, now there is a bright future for Sant Tukaram National Model School. School is giving quality education and a good team of teachers will be there till the end, and the charm of the school will be there in future also. आज 7 जुलाई महेंद्रगे सर का जन्मदिन। उनके जन्मदिन पर हम सभी STNMS फैमिली की तरफ से बहुत 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 सारी बधाइयाँ देते हुए उनके उज्जवल भविष्य के प्रति बहुत सारी शुभ कामनाएं करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें लंबी उम्र मिले और वह सदा आरोग्यमयी रहे।